Welcome back to my channel नीलू's classroom। आओ कुछ नया सीखें। The sun and the solar system. Sun is a huge ball of fire and hot gases. This makes it glow. The sun is the source of all energy. It provides the earth with heat and light. The sun is 100 times bigger than the earth. Without the sun, there would be no life on earth. So, sun is actually a star. It is at the center of our solar system. The planets and the other heavenly bodies that orbit the sun make up our solar system. So, sun जो होता है वो ह्यूज बॉल ऑफ फायर होता है और इसी के चारों तरफ हमारी प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व करती है और बाकी अदर प्लैनेट्स जो हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं इन्हीं प्लैनेट्स की मिस्ट्री, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। देयर आर 8 planets that orbit the sun. Together with the sun, they are called the solar system. And the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So, all these are 8 planets and Earth is the third planet from the Sun. तो Sun क्या होता है? एक स्टार होता है. Planets move around the Sun and they don't have their own light. तो planets की अपनी लाइट नहीं होती है. वो जो स्टार्स होते हैं और सन इज़ ऑल्सो स्टार्स, और स्टार्स के पास ही अपनी लाइट होती है और अदर प्लैनेट्स उन्हीं लाइट से अपने प्लैनेट में उनको लाइट मिलती है, हीट मिलती है। सो जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम्स रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से हैं, लाइक मरकरी गॉड मैसेंजर, वेनस goddesses of love, Mars god of war, Jupiter king of the gods, Saturn father of Jupiter, Uranus god of the heaven, Neptune god of the sea। तो सारे 8 planets जो होते हैं वो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड डू यू नो Venus is called the morning and evening star. Pluto was once considered a planet, but astronomers have now found out that it is not a planet. So, जो मार्स होता है उसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ होता है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव वाटर। सो अर्थ पे वाटर होता है इसीलिए, और सबसे ज़्यादा वाटर होता है। 3/4 अर्थ जो हमारी होती है उसमें वाटर होता है, और ये वाटर जो होता है इसी की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर जो होता है वो बिगेस्ट प्लैनेट होता है, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट, सैटर्न जो होता है उसकी अपनी रिंग्स होती हैं, वीनस जो होता है उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स कहते हैं, और अर्थ के कंपेनियन होता है कौन? मून। द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट एंड द सैटेलाइट मीन्स कंपेनियन। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड completes its revolution in 27 days. Moonlight is actually reflected sunlight. The moon does not have light of its own. Only the stars have their own lights. And sun is a star.
Moonlight is actually reflected sunlight. Recently, scientists have found traces of water on the moon. This is still being studied. On the surface of the moon are great craters and mountain ranges, but no water, air or vegetation. And then there is no sign of life, past or present. There is less gravity on the moon, so it seems one is walking in slow motion on the moon. In 1984, the Indian spaceman Rakesh Sharma went in the outer space, and Neil Armstrong was the first man to walk on the moon in July 1969. The name of his spacecraft was Apollo 11. There is no life on the moon, as there is no air and water. And why does the moon seems to change shape? The moon changes to its shape because as the moon goes around the earth, the sun lights up different part of it. So we see a different shape every day. These shapes are called faces of the moon. तो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, और जो पार्ट पे जो लाइट, सन की लाइट पड़ती है, वो फेस हमें अर्थ से दिखाई देता है. इसलिए हमें मून्स के डिफरेंट शेप्स नज़र आते हैं. तो सरफेस ऑफ द मून में बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. सो मेनी स्टार्स आर ऑल्सो देयर. तो अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है अपने चारों ओर. अर्थ का वन रोटेशन कंप्लीट होता है कब? 24 आवर्स में. और अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून, अ नेचुरल सैटेलाइट. और अर्थ जब अपने एक्सिस में घूमती है तो क्या होता है? रोटेशन. उसे हम रोटेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं. और 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है और चेंजेस इन डे एंड नाइट होता है. तो अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ होता है वो उसमें दिन होता है, और जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ती है वो रात होती है. उसी तरीके से अर्थ जो होता है वो सन के भी चारों तरफ घूमता है. जब वो सन के चारों तरफ घूमता है तो चेंजेस इन वेदर होते हैं, मौसम, ऋतुएं बदलती हैं, और ये कंप्लीट होता है 365 दिन और 6 घंटे. और हर साल 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर पूरा 24 घंटे बनाते हैं, मतलब एक दिन बनता है. इसलिए हर 4 साल बाद 365 दिन की जगह 367 दिन होते हैं. और यही होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. क्योंकि जिस पृथ्वी के अर्थ के जिस पार्ट में सन होता है, सनलाइट पड़ती है, उस तरफ समर होता है, और जिस तरफ नहीं उस तरफ विंटर होता है. तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो चेंजेस इन डे एंड लाइट लेकर आता है, और रोटेशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सन बाय अर्थ लेके आता है चेंजेस इन वेदर. और इसी रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से ही क्या होता है? सोलर एक्लिप्स कॉज करता है. हमें पता है कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, और अर्थ के चारों ओर उसका नेचुरल कंपेनियन मीन्स सैटेलाइट मून रिवॉल्व करता है. तो यही रेवोल्यूशन और रोटेशन के बीच में जब मून है वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है,
तब होता है सोलर एक्लिप्स। तो मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच आ जाता है, जिसके वजह से कुछ पार्ट सन का ढक जाता है, उसकी रेस अर्थ पे नहीं पड़ती। तो हमें यहाँ से नज़र आता है कि जो सन है वो छुप गया है। इसे ही हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स मून, सन और अर्थ की पोजीशन चेंज होने के वजह से होता है।